بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 ستمبر 2024۔ خیر، انہوں نے جو کھیل شروع کیا ہوا تھا جلسے کا آج تکمیل کو پہنچا اور بہت اچھا کیا، اور عوام کی بہت بڑی تعداد نکلی۔ عوام بھری پڑی ہوئی ہے، عوام کو بس کوئی لیڈ کرنے والا چاہیے جو آ کے ان کو بتائے کہ کس طرف جانا ہے، کیونکہ لیڈر کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور سلام کرنا پڑے گا عمران خان کی جو پولیٹیکل مائنڈ ہے اس کو کہ اس نے کس طرح جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جو جدی پشتی سیاستدان ان کا جینا حرام کیا ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک بھٹو قائد اعظم اور اس کے بعد عمران خان، بھٹو کوئی چیز نہیں ہے۔ بھٹو نے جو کیا اس نے صرف اور صرف جو ہے نا قومیت کی بنیاد پہ کیا ہے، اور وہ چلے اس بات کو چھوڑے، عمران خان کی بات کرتے ہیں، عمران خان کی طرف جاتے ہیں۔ عمران خان نے جو آج کر دکھایا نا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں اس کے چاہنے والے نکلے ہیں، کیا دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا جلسہ نہیں ہوا کہ لوگ ہر طرف رکاوٹیں ہیں، سڑکیں بند ہیں، لوگ پھر بھی آ رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ ہے فرق عمران خان کا اور دوسری سیاسی پارٹیوں کا۔ دوسری سیاسی پارٹیوں میں کیا ہے، ابا جی ہیں، اس کے بعد بیٹی ہے، اس کے بعد بھائی ہے، اس کے بعد بھائی کا بیٹا ہے، اس کے بعد بیٹی کا بیٹا ہے، اس کے بعد بیٹے کا بیٹا ہے۔ جدی پشتی انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ عہدے ہیں نا جو پارٹی کے، سارے انہی میں رہنے چاہیے۔ آپ نون لیگ میں دیکھ لیں، آج تک جب بھی نون لیگ جیتی ہے ادھر پنجاب میں، انہوں نے اپنی فیملی کے باہر کسی کو وزارت اعلیٰ دی ہے؟ نہیں دی۔ عمران خان کے آج کے جلسے میں آپ ایک بھی کوئی ایسا بندہ دکھا دیں جو عمران خان کا رشتہ دار ہو۔ عمران خان نے عام لوگوں کو لیڈر بنایا، عام لوگوں کو شعور دیا، عام لوگوں کو اپنی طرف راغب کر کے ان کو بتایا کہ سیاست کرنی کیسے۔ اس نے گلی گلی میں سیاست پہنچائی۔ اور یہ جو زرداری خاندان، کباڑ خانہ اور یہ نواز شریف کباڑ خانہ، ان کی سیاست ڈکٹیٹرشپ سے لے کے ڈکٹیٹرشپ تک کیا۔ پہلے یہ کسی کی ڈکٹیٹرشپ لیتے تھے، اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ڈکٹیٹرشپ لیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، بڑا لوگ اس حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جب وہ بچہ برا کام کرے نا، کہتے ہیں گڑتی کدی لگی ہے، یعنی کہ اس کو پیدائش کے وقت اس کے منہ کو میٹھا کس نے لگایا، اسی کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، نون لیگ کو گڑتی لگی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور اسی وجہ سے ان کی حرکتیں بھی ہونی جیسی۔ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم وزیر اعلیٰ ہو جائیں تو یا وزیر اعظم بن جائے، پورا پاکستان ان کو آ کے سلام کرے، ان کے حکم کے تابع ہو جائے۔ یہ کہیں بیٹھ جاؤ، لوگ بیٹھ جائیں، یہ کہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے ہو جائیں۔ ان میں ڈکٹیٹرشپ ہے، لیڈرشپ ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا بندہ بتا دیں جو نواز شریف اور شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز، ان کے علاوہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ امیدوار رہا ہو، سارے خود ہی۔ جب سے یہ نون لیگ بنی ہے ان کا یہ، اور اب زرداری لیگ میں دیکھ لیں، وہ پیپل پارٹی تھی، وہ کیسے وہ ہم کہہ لیں کہ وہ جو پارٹی ہے وہ جمہوری ہے۔ پہلے ابا جی تھے، وہ بھی ڈکٹیٹرشپ سے آئے، پھر اس کی بیٹی آ گئی، اب بیٹی کے بعد اس کے ہسبینڈ آ گئے ہیں، اب اس ہسبینڈ کے بعد اس کا بیٹا آ جائے گا، اس کے بعد اس کی بہنیں آ جائیں گی، پھر اس کے بعد پھوپھی ہے۔ یعنی باہر کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، ہر طرف انہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے۔ عوام جو آج نکلی ہے نا، لوکل لوگوں نے موبلائز کیا، عمران خان کی بات پہ نکلی ہے، مگر عمران خان نے ان لوگوں کو آگے لے کے آیا، ان لوگوں کو سیاست سکھائی ہے جو لوگ صرف لیڈرشپ، دوسری لیڈرشپ ان کو اگنور کرتی رہی ہے۔ ان لوگوں کو کبھی انہوں نے آگے لانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آج کے جلسے کی جو سب سے بڑی کامیابی کی وجہ ہے نا، عمران خان نے لیڈر پیدا کیے ہیں، چن چن کے لوگوں کو، عام لوگوں کو لیڈر بنایا، اور اپنے رشتہ داری کو اپنی طرح۔ اگر آج عمران خان جیل میں ہوتا اور عمران خان نے اپنے سارے پارٹی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹے تو اس کے بھی ہیں، ان کو بانٹے ہوتے تو کبھی بھی عوام اس کے لیے نہ نکلتی۔ اور عمران خان کے لیے نکلنے کی عوام کی سب سے بڑی وجہ، ایک تو وہ عوام کی خاطر جیل میں بیٹھا ہے۔ اگر اس کو پرسنلی ریلیف چاہیے ہو تو ایک دوسرے دن آزاد ہو جائے، سارے کیس معاف ہو جائے، ایک پریس کانفرنس کرتے تو بس
सारा कुछ ख़त्म हो जाए, और यही वो चाहते हैं। मगर इमरान खान जिद पे बैठा हुआ कि अवाम को आज़ादी दिलवानी है। ये समझ लें आज़ादी की तहरीक ही कह लें। 23 मार्च 1940 में पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक का बाकायदा आगाज़ मीनार पाकिस्तान से हुआ था, और आज ये देख ले इस्लामाबाद से हो रहा है। आप मजाक समझ रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि ये कैसी बात कर रहा है। हकीकत बात यही है कि तब हम जो थे ना ब्रिटिश राज के अंडर तरह तरह के जुल्म सह रहे थे, और वो दुश्मन था खुल के। एक तो वो गैर मुस्लिम भी था, दूसरा वो काबज भी था। मगर पाकिस्तान में जब जुल्म हो रहे हैं, वो हमारे भाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, हम में से हैं और काबजीन में से हैं। तो इसलिए ये जंग उस जंग से या उस आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले जब से ये पाकिस्तान बना आज तक आज़ादी मिली नहीं है, क्योंकि काबजीन पहले जो थे वो दूसरे रंग नस्ल के, ज़ुबान के, इस मज़हब के थे। अब जो काबजीन है वो रंग भी हम जैसा है, नस्लें भी हम में से हैं, मुस्लिम इस्लाम मज़हब भी हम जैसा है, रहते भी हम में है। इस वजह से अवाम को पता ही नहीं चला कि उन पर कब्जा हुआ है, उनकी आज़ादी छीन ली गई है। तो अब जो अवाम को शऊर मिल गया इमरान खान की बदौलत, अल्लाह ताला ने देना होता है, वो किसी को भी चुन ले। रास्ता तो अल्लाह ताला की ज़ात बनाने वाली होती है। आज़ादी जब अल्लाह ने किसी को जुल्म को किसी को ख़त्म करना हो, तो फिर उसके लिए किसी न किसी बंदे को अल्लाह चुन लेता है, चाहे इमरान खान हो या चाहे कोई और हो। अल्लाह ने बस जरिया बनाना होता है। अल्लाह ताला जिसको आगे ले आए, ये वो कितना को बर्दाश्त कर सकता है कि जुल्म, ये इस लीडर की सबसे बड़ी निशानी होती है। वो सबसे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करता है, सबसे ज़्यादा वो सख्तियाँ बर्दाश्त करता है, सबसे ज़्यादा मुसीबतें उस पर आती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमें हमारा इस्लाम बता रहा है। आप जितने भी अम्बिया गुजरे हैं, ये जितने भी औलिया असहाबा कराम हैं, उनकी ज़िंदगियाँ उठा के देख लें, मुश्किलों से भरी पड़ी हुई हैं, आजमाइशों से भरी पड़ी हुई हैं। अब इससे ज़्यादा आप क्या सोचेंगे। अल्लाह ताला ने जिस बंदे को लीडर बनाना होता है ना, उसको बहुत सारी आजमाइशों से गुजारता है। तो इसलिए ये अल्लाह ताला की हिकमत होती है। और इमरान खान के ज़रिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को आज़ादी दिलवानी है, तो अल्लाह ताला ने सबको इकट्ठा भी कर दिया। अब ये शुरुआत है। अगर तो ये जलसा सब करके पीटीआई वाले सोचें कि ये अब सारा कुछ ख़त्म हो गया है, वो सारे छोड़ के भाग जाएंगे, रास्ता साफ हो जाएगा, हम आके इक़्तिदार में आ जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। आपको छीनना पड़ेगा ये इक़्तिदार। अगर उन्होंने आपको इक़्तिदार देना होता तो वो 8 फरवरी को जो इलेक्शन की रात को उन्होंने वोटिंग में घपले किए हैं सारे, वो ना करते। अगर उन्होंने आपको आपके इक़्तिदार को कबूल करना होता तो आपके लीडर, आपके जो वज़ीर आज़म की जिन्हें सीटें पूरी होने के बावजूद भी आपसे छीन ली, आज तक अदालतों के जरिए आपसे सीटें छीन रहे हैं। आप वो चाहते हैं कि आप उनके कवानीन को माने, वो किसी कानून को ना माने। ये नहीं जब अदालतें उनके खिलाफ हुक्म देती हैं तो वो कोई कानून नहीं मानते, मगर अदालतों के जरिए पीटीआई के खिलाफ हर फैसला लेते हैं, और वो चाहते हैं कि पीटीआई इन फैसलों का एहतराम करे। वो दिखने में अदालतों के फैसले, मगर हकीकतन अदालतों के फैसले नहीं हैं। अदालतों के फैसले जो हैं वो नहीं मानते। तो इसलिए ये शुरुआत है आज़ादी की। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा आगे जाके। ये इब्तदा है, इंतहा नहीं है। पहले जो था मरहला था वो शऊर का था, अवाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का था, अवाम को इन दो सियासी पार्टियों से अलग करने का था, अवाम को ये बताना था कि तुम लोग अपने जैसे लोगों के ग़ुलाम हो, अवाम को ये बताना था कि तुम्हारे हकूक़ पर डाका डल रहा है, अवाम को ये बताना था कि तुम्हारे वसाइल लोग अपनी यशों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अवाम को ये बताना था कि तुम जिनको अपना लीडर समझते हो वही असली चोर है। अब जो मरहला है ना, आगे आने वाला जो मरहला है, ये 5 साल हो या 10 साल हो आज़ादी तक, इस मरहले में अवाम ने इनके खिलाफ डायरेक्ट, जो जिनको पॉइंट आउट किया है उनके खिलाफ डायरेक्ट जिद्दोजहद करनी है और उनसे आज़ादी लेनी है। और इसकी इब्तदा आज हुई। ये समझ लें कि आप आज़ादी के लिए तहरीक पाकिस्तान 23 मार्च 1940 की तरह आज की भी जो जलसा है वो तहरीक ही शुरू हुई है आज़ादी की। क्योंकि जुल्म जबर के जो पहाड़ पिछले 2 साल से 3 साल से गुजर रहे हैं अवाम पे, वो ब्रिटिश ने भी नहीं किए होंगे। इतने मजालिम ब्रिटिश ने भी किए होंगे, वो भी इस तरह के लोग सेम मेंटालिटी सेट है, वही जो कुछ उन्होंने इनसे कम ही किया होगा, इन्होंने उनसे ज़्यादा किया। तो इसलिए आज का जो जलसा है वो शुरुआत है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अवाम को इस बात का इल्म हो गया कि वो अपनी आज़ादी के लिए सड़कों पे निकलेंगे तो आज़ादी मिलेगी। अगर अवाम घर पे बैठे ये सोचती रहे कि कोई नहीं, मैं नहीं करूँगा, वो दूसरा कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा, तो सारे घर बैठे रहेंगे तो कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए पीटीआई को और उसकी लीडरशिप को
किसी हद तक तो मुबारकबाद बनती है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों और बड़ी बैठ के बातें करना बड़ा आसान है। जब प्रैक्टिकल फील्ड में आप जाते हैं, रोज़ वीडियो देखते हैं, पुलिस किस तरह उनको तंग कर रही है, किस तरह उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, अपने बच्चों का रिस्क लेके, अपनी जानों का रिस्क लेके निकलते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। उन पर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी करते हैं, वो भी किसी हद तक अच्छा है, मगर इतना भी हर बात पे उन पर तनकीद भी अच्छी नहीं है। वो कुछ ना कुछ क्रेडिट उनको जाता है। जहाँ इमरान खान की आवाज़ पे आवाम निकली है, वहाँ लोकल लीडरशिप ने भी आवाम को रास्ता फराहम किया कि इस रास्ते से चल के उधर पहुंचना, इकट्ठा किया। अगर हर बंदा अकेला अकेला निकलता तो कोई भी ना इधर पहुंचता। ग्रुपों की सूरत में छोटे छोटे लोकल लीडर्स ने उनको गाइड करके ग्रुपों की सूरत में लेके आए तो वो पहुंच गए। तो इसलिए ये शुरुआत है। इस सबसे पहले तो पीटीआई को अपने अंदर से गंद साफ करना होगा। जो लोगों को धोखा देते हैं, पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं इमरान खान आ गया बाहर, इमरान खान आ गया बाहर, इमरान खान आ गया बाहर, बस आ गया, ऐसे लोगों से। और दूसरा, इमरान खान की आज़ादी के लिए सबसे पहले उसको बाहर लाएं, फिर वो आपको लीड करेगा और फिर इसके बाद पाकिस्तान को आज़ादी मिलेगी। उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह आवाम आज निकली है, आइंदा भी आवाम इमरान खान की आवाज़ पर निकलेगी। निकलना ही निकलना आवाम ने। आवाम इनसे तंग है, आवाम इनके मुजालिम से तंग आ गई। आवाम चाहती है कि कोई हमें बताए हमने क्या करना है, वो करने के लिए तैयार है, वो मरने के लिए तैयार है। जिस तरह आज उन्होंने रुकावटें हटाई हैं, पुलिस के जुल्म जबर के बावजूद उन्होंने रास्ते निकाले हैं, कंटेनर को उठा उठा बाहर फेंका है, गाड़ी निकले हैं, काफिलों की सूरत में पहुंच गए हैं। किसी भी सूरत हुकूमत नहीं चाहती थी कि लोग पहुंचे, मगर आज कोई भी नहीं कह सकता कि केपीके वाले आए ज़्यादा आए थे, पंजाब वाले नहीं थे आए। हर तरफ से अवाम आई है, पूरे पाकिस्तान से अवाम आई है। कोई इंसानियत या सूबे की बुनियाद पर नहीं कहना चाहिए कि ये ज़्यादा था, ये वो कम थे। लोगों ने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है। अब ये अगर पीटी वाले रिलैक्स हो गए कि अब तो हमारा प्रेशर बढ़ गया है, या वो आपको ट्रैप कर लें कि हाँ जी हम करने वाले हैं, ऐसा करें, बातें वो मुज़ाकरात शुरू करें। मुज़ाकरात की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कोई मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए। मुज़ाकरात उनसे होते हैं जिनकी अंदर इंसानियत होती है, जो ज़ुबान पे बात रहते हैं अपनी पे, जिनमें ना ज़ुबान हो, ना जिनमें इंसानियत हो, ना जिनमें अखलाकियत हो, झूठ ही झूठ उन्होंने करना हो, जुल्म ही उन्होंने करना हो। ये शराबी वाला सीन है। वो सिटी लाइफ एक मूवी है 40 चैपलन की, उसको एक मिल जाता बंदा, वो गरीब होता है, सड़कों पे घूम रहा होता है, तो एक दिन पब में जाता है, उसे एक शराबी मिल जाता है। वो कहता तू मेरा यहाँ है, तू तो ये वो। उसको ना रात को उसने शराब बहुत पी होती है, बहुत ज़्यादा नशे में होता है, उसको उठा अपने घर ले जाता है। सुबह जब उठता है उसके साथ एक बंदा लेटा होता है, उसको होश आते वो उसको ना टांग मारता है पेश, उसको ब्रेड से नीचे गिरा दे और सिक्योरिटी को बुला लेता है, इसको निकाल दो। ये नहीं कि जब नशा उतरता है तो वो कहता है ये तो मेरा है ही कुछ नहीं। इसी तरह के वो जो आजकल पाकिस्तान पे काबिज़ ना नशेड़ी टाइप हैं, जब उनको नशा होता है ना तो वो बातें अच्छी अच्छी करते हैं, मुज़ाकरात की, अवाम के फलाह बहबूद के लिए, अवाम के लिए ये करें। जब वो नशा उतरता है ना, वो कहते हैं तू कौन तो मैं कौन, फिर उनके अंदर का जालम जागता है, फिर वो अवाम की ना पीठ पे लात मारते हैं। तो इसी तरह ये जो काबिज़ीन है, इनसे जान छुड़ाने के लिए आपको ये जो दोस्ती वाला हाथ नज़र आएगा ना, इससे बचना होगा। ये दोस्ती कोई नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा फ्रॉड होगा। तो इससे बच के रहना होगा आवाम को भी और ख़ुसूसी तौर पर लीडरशिप को भी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बेहतरियाँ होंगी, मगर अभी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बाकी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।